Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 7 from the chapter of electric charges and field. Uh, Today we will be doing a couple of numerical problems from the topic of electric field. But before doing that, we will discuss about the general properties of electric field because it was not discussed in the previous lecture. So after discussing about the general properties of electric field, we will go on to this numerical section and we will try to solve a couple of questions. Now I will try to explain the general properties of electric field with the help of these two diagrams. This is the configuration of electric field for a combination of charges. Here we have taken two positive charge. So and this is the combination of a positive charge and the negative charge. The arrow here are giving you the direction of these electrical field lines, and so with the help of these two diagrams I would be trying to make you understand the properties of electrical field. So the first point is these electric field lines, they start from the positive charge and end at the negative charge. ये देखिए यहाँ पे these electric field lines are starting from the this positive charge and they are ending at the negative charge. This is the first thing. Second thing, the electric field lines are continuous curve. These are the continuous curve. ठीक है, ये आपकी they are the continuous curve without any breaks. Second, the third line, that is field lines never cross each other. जो ये electrical field lines हैं, they will never cross. किसी भी point पे you will not find two electrical field lines. That is, at any point you will be finding किसी भी एक point के ऊपर you will be finding only one this electrical field lines, and the tangent to that field line will give you the direction of electrical field at that point. अगर दो field lines वहाँ पे अगर वो intersect हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस point के ऊपर दो direction है electrical field की, which is not possible. So the electrical field lines never cross each other. Fourth is the electrical field lines do not form a closed loop. They do not form a closed loop. ये आपका fourth point हो गया. And the last one is this, that is the tangent to the field lines at any point gives the direction of field at that point. मतलब मान लीजिए एक point मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हमें field line की direction हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे. इस पॉइंट पे ऊपर जो ये जो कर्व है इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे, तो जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट बनाया तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है फील्ड की वो ये है, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो इधर आ गई. अगर यहाँ बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी. ठीक है, सो ये हो गया. सो हाँ, और वन मोर थिंग ये है कि द फील्ड लाइंस यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. The field lines from the positive charge are directed outward from the charge. ये देखिए, ये जो charge है positive charge है, so the field lines are directed outward from the charge, whereas the field lines for the negative charge are directed inward. It is indirected inward like this. ठीक है, so this is the another point which I have not written it here. So these are the you can say the six general properties of electric field, and now we will try to just solve a couple of questions on the topic of electric field. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप दो जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी फील्ड लाइंस जो हैं दे आर गेटिंग, ये बाहर की तरफ जो है वो निकल रही. दीज फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट आपको बताया था कि द फील्ड लाइंस दे स्टार्ट दे फ्रॉम द दिस पॉजिटिव चार्ज एंड एंड द नेगेटिव चार्ज. इस प्रकार से ये आपका ये आपका एक ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का. ठीक है, और tangent at to the field line at any point will give you the direction of the field line at that point. ठीक है, and the field lines never cross each other. They do not form closed loops हैं. These are the continuous curve without any breaks, and they start from the positive charge and end at the negative charge. So this is all about the general properties of electric
field. And now let us move on to the questions now. The question here is written on the blackboard, or sorry, on this board, and the question is: an electron is falling from rest in a uniform electric field of value 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. यहाँ पे एक इन्होंने क्वेश्चन में फिगर दिया. दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. ठीक है, दिस इज दी एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, ऐसे ही बनाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एक फॉल कर रहा है. ठीक है, इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है, फाइंड द टाइम ऑफ फॉल इफ द डिस्टेंस between the two charged plates is 1.5 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है 1.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड नाउ जस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक, ये जो फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज द फील्ड लाइन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज. सो द फील्ड लाइन विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है. एंड सो यहाँ पर मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का. ये इलेक्ट्रॉन का ये जो आपका उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है. तो हमें ये हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने टाइम में यहाँ पर आके गिरेगा. ठीक है, सो हमें ये पता है कि वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. ये हमको पता है. सो नाउ इफ लेट अस से इफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको A ही ले लेता हूँ, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ये AE. मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको, एंड द चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन भी आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है. सो इफ AE है तो then we can write that F is equal to QE, which can be equal to AE dot ME, because this is the measure of the force. AE dot, that is mass into acceleration. So यहाँ से हम it implies that जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है वो निकालेंगे. Q की वैल्यू दी हुई है, 1 पॉइंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? QE डिवाइडेड बाई ME. सो Q की वैल्यू है हमारे पास में, E की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास कितना है? 9.11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg. तो दिस इज दी सो ये आपका हो गया है एक्सेलरेशन हो गया. सो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे. AE विल बी इक्वल टू, इसको 1.6 इंटू 2 कर देंगे तो ये 3.2 हो गया, डिवाइडेड बाई 9.11 कर देंगे, इधर लिख लेंगे, और इंटू 10 टू द पावर 31. ऊपर माइनस 31 विल गो, अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये होगा 31. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 31 विच इज इक्वल टू 16, 10 टू द पावर 16 ये हो जाएगा. दिस इज द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो E की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फॉल. तो ये हमें डिस्टेंस दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर है हमारे पास में.
Now here we will be using the equation of motions. ठीक है, इसको हम यहाँ पे हाँ एक ही वैल्यू है तो आई जस्ट इसको यहाँ मैं मिटा देता हूँ एंड तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, वी विल यूज दैट एस, वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो एस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 100 हो गया. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 हो गया हाफ इंटू ए की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है ए टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर कितना हो गया, इट इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 100 ए. ठीक है, ये हो गया. सो इट इम्प्लाइज दैट टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, ए कितनी है, ए की ये वैल्यू है दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 डिवाइड बाई. तो जब हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू 3 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू तो नीचे रहेगा, ये 9.1 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 है ना. सो इट इम्प्लाइज दैट टी विल बी इक्वल टू wait, I will have to take the calculator here. Okay, where's the calculator? Yeah, so the value will be equal to 9.11 into 3, that is equal to 27.33 divided by 3.2 divided by 3.2 which is equal to 8.54. ये हो गया अंडर रूट 8.54 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 18. ये हो गया सेकेंड्स. सो टाइम ऑफ फॉल हमारा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 18 है, तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर 9. अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट हमने हटा दिया इसका. और 8.54 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो विच विल बी लिटिल लेस देन दैट, आई थिंक इट विल बी नियर अबाउट 2.92 अप्रोक्सीमेटली. या सो ये आपका हो गया इंटू 2.92 आ रहा है. ठीक है, सो ये आपका सेकेंड्स. सो द टाइम ऑफ फॉल विल बी इक्वल टू 2.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 सेकेंड्स. ठीक है, so this is the answer. The time of fall of the electron will be equal to 2.92 into 10 raised to the power -9 seconds. Now let's move on to the second question. यहाँ पे important क्या है, you have equated this electrostatic force that is which is equal to QE. Means we have equated QE with means QE is equal to this acceleration of the electron into the mass of the electron, which is also the force. So we have equated force with QE. ठीक है, so this was the important relation which we have used while solving this question. F is equal to QE, which is equal to mass of electron into the acceleration of the electron. Now in these questions are very easy. The only thing is that you have to increase your computation skills, because in the NEET examination the most important thing which you have to remember, or which you have to means which is very very important for you, is that you have to solve approximately one question in approximately 1 minute. I think 50 questions होते हैं, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स ही मिलते हैं. सो उसके लिए आपको क्या है, यू हैव टू
be well versed with all the different types of questions which has been asked in the last 30 years. उनको आप सेग्रीगेट कर लो और उन्हीं तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप वर्किंग करो. मीन्स जितने ज़्यादा आपको उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकते हैं वो आप मतलब इकट्ठा करो और उसके बाद में यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन. तो उससे होगा क्या कि एक तो आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन आपको अभी तक आए हुए हैं उसके बारे में आप अवेयर हो जाओगे. और सेकंड थिंग ये है कि आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कंपटीशन स्किल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे. अदरवाइज 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आसान है, आपको दिख रहा है कि आप कर सकते हो, बट टाइम एक लिमिटेशन की वजह से हो सकता है कि आपको सामने ही क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको आता है बट टाइम नहीं है. तो इसलिए जो है आपको अपनी कंपटीशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी. सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है. There are 2 point charges here. This is Q और माइनस Q. इसकी वैल्यू जो है दी हुई है 10 to the power -8 कूलम. इसकी वैल्यू है आपकी 10 to the power -8 कूलम और इसका है -10 to the power 8. दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम ही है. ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. दैट इज 10 to the power -8 कूलम एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर. तो नाउ दे आर आस्किंग दैट यू हैव टू फाइंड the intensity of electric field at a point C which is equidistant from these 2 charges. ठीक है, let us say this is a point A and this is a point B. Point B पे नेगेटिव चार्ज है, point A पे नेगेटिव चार्ज है. इसकी भी जो डिस्टेंस है इक्विडिस्टेंट है. मीन्स इट इज यहाँ जो दिया हुआ है इट इज 0.1 मीटर दिया हुआ है. मीन्स दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. तो ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है C का A से वो 0.1 मीटर है और C का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 मीटर. ठीक है, ये भी. और द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज दीज आर दी टू मीन्स A एंड B आर दी पोजिशन ऑफ दीज 2 चार्जेस. तो ये भी आपका 0.1 है मीटर. सो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है. ये 60 डिग्री हो जाएगा फिर. नाउ एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. तो ये आपका जो है इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट विल बी हियर. लेट अस से इट इज ए ई टू that is designate this Q as that is equal to Q1 और इसको हम लोग Q2 ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा that is the electric field due to the charge Q1 will be directed in this direction that is along AC. और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is directed inward. That is it is directed inward means ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज. दैट इज इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. इनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज. सो ये आपका हो गया. लेट अस सी इसको डेजिग्नेट कर देते हैं हम EQ2 से. नाउ ये 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ है मेरा 120 हो गया दिस वन. ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है 60 है तो आपको 120 हो गया. Now we have to find the resultant electric field at this point C due to the presence of these 2 charges at A and B. Now this C is the distance of this point from the point A and B is 0.1 meter and the distance between these 2 charges is also 0.1 meter. So what we will do is first of all we will find the value of EQ1, which will be equal to EQ2. The magnitude will be the same because
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो इसलिए जो ई की जो वैल्यू आएगी वो आपका हो गया 1/4 पाई, दैट इज ई क्यू वन विल बी इक्वल टू ई क्यू टू विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर हमारा है मीटर में तो ये आर स्क्वायर हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूटन कूलम। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो वी विल यूज दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम मानते हैं कि लेट अस से जो रिजल्टेंट है इज गिवन बाय ई आर, लेट अस से, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, सो द रिजल्टेंट विल बी बाइसेक्टिंग दिस एंगल, ठीक है, ये रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्ट कर जाएगा और इसको हम बोलेंगे लेट अस से इट इज डिनोटेड बाय ई आर। सो ई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू ई क्यू वन होल स्क्वायर ई क्यू टू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई क्यू वन ई क्यू टू डॉट कॉस 120, कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 120, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दैट इज दी ई क्यू वन एंड ई क्यू टू जो है इनके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री है, तो इसलिए मैंने कॉस 120 लिख दिया। तो ई आर क्या हो गया, ई आर विल बी इक्वल टू, नाउ cos 120 क्या है, विच इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30 इक्वल्स टू ये हो जाता है माइनस साइन 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। नाउ ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है, ये आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है या बेसिक जो कैलकुलस है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड कुछ बेसिक अलजेब्रा और मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री, इन सब के बारे में आपको मैं एक सेशन डेफिनेटली लूँगा आगे, सो दैट बिकॉज इन सब का जो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के जो आपके फॉर्मूलेज हैं या इनकी जो है आपकी यूसेज कहीं ना कहीं पे इस पूरे फिजिक्स में आती रहेगी, तो उसमें आपको क्लैरिटी बिल्कुल यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द बेसिक मैथमेटिक्स, अदरवाइज न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। सो ई क्यू का ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के ले लेता हूँ, अभी कांस्टेंट के कर देता हूँ, के डॉट 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर होगा, और क्योंकि ये और ये सब बराबर है तो इसको हम क्या करते हैं स्ट्रेट अवे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 टाइम्स, अब मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट में के इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ये है प्लस, अभी साइन -1/2 है, तो ये आपका जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा माइनस ई क्यू वन, इसका क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज के डॉट 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ये रिजल्टेंट क्या है 2 टाइम्स ये है 2 इंटू दिस माइनस दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के 8 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू के इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। So the resultant resultant electric field, that is ER, इसकी वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू क्या है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू 10⁻⁻8 लिखा ही हुआ है, और ये जो 0.1 है इसका डेसिमल हम हटा देंगे तो 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट 100 हो जाएगा, 100 जो हम ऊपर ले लेंगे, so which will be equal to 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, so which is equal to ये हो गया 9 इंटू 3 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। so this is the value of the resultant electric field at this point C, ठीक है, at this point C due to the
electric field generated by the charge Q and minus Q placed at A and B respectively. Because these two, the value of these two electric field are equal, therefore the resultant, that is the resultant electric field, will be directed in this direction, and it will be bisecting this angle, or you can say that this angle, this angle will be equal to 60 degree. ये 60 डिग्री होगा, ऊपर वाला भी 60 डिग्री होगा, ठीक है. सो इसका डायरेक्शन हम अगर हमें डिनोट करना है तो वी कैन से the direction of this resultant electric field will be parallel to AB and in the direction from A to B. ठीक है, it will be parallel to AB. ये जो डायरेक्शन आप देखेंगे ये parallel to AB है and it will be directed from A to B. A से B की तरफ में इसका डायरेक्शन है, ठीक है. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, एंड so I think this is how we have to solve this question. And so thank you very much for this session. In the next session, that is in the lecture number 8, we will try to do a couple of questions and then we will move on to the next topic in this from the chapter of this electric charges and field. And in the end, I would like to emphasize on one thing, that please try to do as many questions as possible from whatever sources you can means you can get the questions of the different types which has been asked in the NEET examination in the last maybe 20-30 years. And secondly, NCERT की किताब में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली NCERT के जो एग्जाम्पलर भी क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत दे आर मीन्स उनके जो दैट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आप बोलो वो काफ़ी अच्छी मीन्स दे आर नॉट वेरी इजी टू सॉल्व. सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ऑल ट्राई टू सॉल्व द NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. उससे आपको एक यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज of getting an idea of how to solve the different types of questions which are available from that particular chapter. And बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको बस बेसिकली ये है कि यू हैव टू फॉलो एक NCERT की किताब फॉलो करिए. सेकंड थिंग ये है कि जितने भी सोर्सेज से आपको ये नीट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो आप जहाँ से उन तरह के जो क्वेश्चंस को अगर आपको जितने ज़्यादा मिल जाएं अलग अलग सोर्सेज से, उनको आप कलेक्ट करिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज कंप्यूटेशन स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी. 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट वेरी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8.